So this is basically the lecture related to the address calculation. So I will tell you each and every point related to this topic, what is address calculation and where it is required and needed. Okay. So 1 second, please. Actually, the students are joining. Okay. If you talk about what are the prerequisites of the address calculation, the prerequisites of the address calculation is that you must have some idea about the matrix 2D array. There are two kinds of array. One is one-dimensional array, the other one is two-dimensional array. The address calculation is basically topic related to the one-dimensional and two-dimensional. But as we think about the course, as per the course specification, only double dimension array is basically in the examination. Okay, 1D array से related address calculation हमारे एग्जाम में नहीं है. But address calculation can be applied for the one-dimensional array and the two-dimensional array. Okay, so before starting the topic, you must have the idea of matrix. So this is basically a matrix. This is 4 cross 4 matrix. Understand? There are two ways to store the element in the memory. One is row major, another one is column major. When we store the element in the 2D array, जब हम कुछ elements 2D array में store करते हैं, तो प्रोग्रामर और यूजर के अकॉर्डिंग तो वो एलिमेंट इस तरह से स्टोर होते हैं. दिस इज द वे टू स्टोर द एलिमेंट्स इन द टू डायमेंशनल एरे. सम लिटिल डिस्टर्बेंस फ्रॉम माय साइड प्लीज. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली द मैट्रिक्स ऑफ 4 क्रॉस 4 एंड दीज आर द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन द मैट्रिक्स. Properly, I am just slowly coming to the topic. Just I am discussing the brief related topics. So this is basically the double dimension array in which elements are stored. 1, 2, 3, 4. 1 minute. So this element is stored on 0, 0. 0 row, 0 column. This element is stored in the 0 row, 1 column. These are the indexes or the position of number 02 and 03. इन पोजीशन और इंडेक्सेस से तो हम फेमिलियर हैं, लेकिन एक चीज और होती है जिसका रिलेशन हमारी डबल डायमेंशन एरे से है, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड एड्रेस. तो ईच एंड एवरी एलिमेंट इज स्टोर्ड इन द डबल डायमेंशन एरे on the basis of address. Suppose I want to take a random address of this element. Suppose ये element हमारा x21 पे store है. This is the memory address of this element. जितने भी elements हमारे double dimension array में store होते हैं, उन सब का एक memory address होता है. Understand? तो इस one का ये address है suppose. Understand? इसी तरह से जब कोई दूसरा एलिमेंट होगा तो जितना एरिया इसने ऑक्यूपाइड कर रखा है उसके बाद उसको एड्रेस एलोकेट करेंगे. अगर हम जावा की बात करें तो इंटीजर इन द जावा ऑक्यूपाइड द 4 बाइट्स. ओके, अगर हम C++ की बात करें तो इन द C++ द इंटीजर ऑक्यूपाइड द 2 बाइट. So this is basically the language specification. तो अगर हम जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो अगर ये x21 है तो x21, x22, x23, x24 ये 4 बाइट ऑक्यूपाइड करेगा. तो इसको जो एड्रेस एलोकेट किया जाएगा वो x25 होगा. ऑलराइट. सो x25 is the memory address of 2 and x21 is the memory address of 1. My topic is address calculation, so you must have the idea what is address. So accordingly, अगर हम इसकी बात करें तो x25, x26, x27, x28, so x29. Understand? So x29 is the address of 3. x25 is the address of 2, x21 is the address of 1. Understand? So similarly, हम किसी भी सेल का एड्रेस 4 बाइट एक्ट्स करने के बाद कैलकुलेट कर सकते हैं. इट्स अ मैनुअल प्रोसेस.
अगर हमें इस 9 का एड्रेस कैलकुलेट करना है तो हम इसी तरह से 4 बाइट्स ऐड करके हम स्टोर कर सकते हैं। इफ द साइज ऑफ द मैट्रिक्स इज लेस, सपोज 4x4, then this manual process is very easy to calculate the address. ओके, हम लोग मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अगर हम इसको हायर साइड पे सोचें कि अगर हमारी मैट्रिक्स का साइज है 1000 क्रॉस 1000, it's a very huge matrix, so manual calculation will take lot of time and there are some accuracy issues. तो मैनुअल कैलकुलेशन छोटी मैट्रिक्स के लिए तो हम अप्लाई कर सकते हैं, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द बिगर मैट्रिक्स. सो फॉर दैट पर्पस सम फॉर्मूलाज आर डिजाइन. जब भी हमारे एलिमेंट्स डबल डायमेंशन एरे में होते हैं, तो अगर हम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द डबल डायमेंशन एरे, यानी कि देयर आर सम रोज एंड देयर आर सम कॉलम. रो और कॉलम में डिवाइड करके हम एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं. लेकिन जब ये मेमोरी में स्टोर होते हैं तो मेमोरी में ये सीक्वेंशियली और लीनियर मैनर में, लीनियर मैनर, 1 सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट, ये लीनियर और सीक्वेंशियल मैनर में स्टोर होते हैं. हम जब कॉपी पे एक मैट्रिक्स को ड्रॉ करते हैं तो ये अरेंजमेंट होता है, लेकिन जब इसको हम मेमोरी में स्टोर करते हैं तो ये सारे एलिमेंट एक सीक्वेंस में स्टोर होते हैं. सीक्वेंस का मतलब एक लाइन में, इस तरह से. तो अगर हम इसको रो मेजर स्टोर करेंगे तो रो मेजर का मतलब है जो रो के एलिमेंट्स हैं, लाइक 1 2 3 4, पहले वो स्टोर होंगे, मतलब दिस इज द फर्स्ट रो एलिमेंट्स आर स्टोर्ड. आफ्टर दैट द सेकेंड रो एलिमेंट विल बी स्टोर्ड like this, 7 8 9. After that the third row element will be stored, 4 6 3 1, 4 6 3 1. These are the element of the third row. Now what about the fourth row? These are the element of the fourth row and it will be stored like that. So this is the row major storing procedure. Okay, अगर हम इसी मैट्रिक्स को कॉलम मेजर वाइज मेमोरी में स्टोर करें, दो ही अरेंजमेंट्स हैं, या तो रो मेजर स्टोर हो सकते हैं ये एलिमेंट, या कॉलम मेजर स्टोर हो सकते हैं. तो अगर हम इन एलिमेंट्स को कॉलम मेजर वाइज स्टोर करें तो कॉलम्स के एलिमेंट्स को हम प्रेफरेंस देंगे, यानी 1 7 4 4, ये हमारी रोज होती हैं और ये हमारे कॉलम्स होते हैं. अंडरस्टैंड? तो ये एलिमेंट्स पहले स्टोर होंगे, यानी 1 7 4 4, देन आफ्टर दैट 2 6 6 5, then after that 3 8 3 3, then after that 4 9 1 1. Just a moment, like this. Understand? So this is basically the element of the first column, this is the element of the second column, this is the element of the third column, and this is the element of the fourth column. तो मेमोरी में किस तरह से एलिमेंट स्टोर हैं, ये अरेंजमेंट और प्रोसीजर ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन. सो अकॉर्डिंग टू दैट रो मेजर और कॉलम मेजर टू डिफरेंट फॉर्मूले हमारे डेवलप हुए. तो जैसे हम क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हाउ द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड. अगर एलिमेंट हमारे रो मेजर स्टोर हैं तो उसके अकॉर्डिंग एक डिफरेंट फॉर्मूला है, अगर एलिमेंट्स हमारे कॉलम मेजर वाइज स्टोर हैं तो उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला. सो अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट वी हैव टू सेलेक्ट द फॉर्मूला. ओके, अंडरस्टैंड? दिस अरेंजमेंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट कॉलम and 1 7 4 4 is stored. This is the second column, 2 6 6 5. This is 2 6 6 5. Second column elements are there. 3 8 3 3. This is the third column elements are there. 4 9 1 2. This is the fourth elements. Fourth column elements are there. So according to the division, two formulas is prepared. Now this is the formula of a row major. अगर आपके एलिमेंट्स मेमोरी में रो मेजर हैं तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. ये फॉर्मूला किस लिए अप्लाई किया जाता है? 1 सेकेंड. सपोज आपसे कहा जाता है कि आपको इस 2 का मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट करना है, या इस 5 का मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट करना है, या इस 4 का मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट करना है डायरेक्टली, तो उसके लिए वो फॉर्मूला है. अंडरस्टैंड? तो इस 2 को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? On the basis of indexes. For example, 1 second please. 0 0 is the index of 1, 2 का index है 0 1,
3 का index is 02, 4 का index is 03. You must have the idea. Or what about this? This will be 10, this will be 20, and this will be 30. These are the indexes. Means 1 row ka 0 column, 2 row ka 0 column, 3 row ka 0 column. Now what about this? This will be 3 1, 3 2 and 3 3. आपसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि you have to find out the address. You have to find out the address on the element which is stored on 3 2. जो एलिमेंट आपका थर्ड रो के सेकेंड कॉलम पे स्टोर है, आपको उसका एड्रेस कैलकुलेट करना है. अंडरस्टैंड? दिस इज बेसिकली माय क्वेश्चन. नाउ आफ्टर दैट, अगर रो मेजर है तो उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. aij is equal to b plus w n multiply I minus lr plus j minus lc. अब इन सारे अल्फाबेट्स और सारे टर्म्स की मीनिंग हमको समझनी है. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है बेस एड्रेस. व्हाट इज द बेस एड्रेस? बेस एड्रेस का मतलब होता है जहां से हमारी मैट्रिक्स स्टार्ट होती है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है. द फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज स्टोर्ड ऑन द 0 0. और इस 0 0 पोजीशन पर जो एलिमेंट स्टोर है उसका जो एड्रेस होगा, वॉट एवर द एड्रेस ऑफ वन एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड द बेस एड्रेस. अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड द बेस एड्रेस. जैसे आपने देखा कोई अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट में जो पहला फ्लैट होगा, उस फ्लैट का जो एड्रेस होगा, दैट विल बी द बेस एड्रेस ऑफ दैट अपार्टमेंट. अब इसी एड्रेस को जब हम इंक्रीज करेंगे तो हमें और फ्लैट्स के और ऑल सेल्स के एड्रेसेस मिल जाएंगे. ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. द बी इज द बेस एड्रेस. नाउ व्हाट अबाउट द डब्ल्यू? डब्ल्यू इज द मेमोरी साइज. मतलब एक सेल कितनी मेमोरी ऑक्यूपाइड कर रहा है. इफ इट इज अ इंटीजर, देन इट विल टेक द 4 byte or 2 byte. If it is a character, then it will take the 2 byte or 1 byte. It will also be mentioned or given in the question. ये जो एक सेल है उसने मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रखा है, ये W से पता चलता है. W is the memory size, means a width or a dimension of a particular cell area. Okay. Now what about N? N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स. जैसे अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो दिस मैट्रिक्स इज बेसिकली द 4 क्रॉस 4. तो इसमें 4 रो हैं और 4 कॉलम हैं. तो अगर हम रो की बात करें तो 4 हैं, कॉलम की बात करें तो 4 है. नाउ दीज 3 पॉइंट्स आर क्लियर. I and J मतलब जिस रो का एड्रेस हमें फाइंड आउट करना है वो I है, और जिस कॉलम का एड्रेस हमें फाइंड आउट करना है वो J है. द रो विच इज टू बी फाइंड एंड द कॉलम विच इज टू बी फाइंड, दिस इज I and J. One second, this is a very important term. I want to clear this. See, अगर मान लो हमें इस सेल का एड्रेस फाइंड आउट करना है, इस सेल का, या हमें इस सेल का एड्रेस फाइंड आउट करना है. जस्ट अ मोमेंट प्लीज. तो 1 0 1 2 3, दिस इज द थर्ड रो. दिस इज 3 0 एंड दिस इज 3 1. 3 is the row and 1 is the column. Understand? And 5 is stored on index 3 1. तो अगर हम I और J की बात करें तो I का मतलब होता है द रो which is to be find. तो मतलब अगर हम I की बात करें तो I हमारा हो जाएगा 3, और अगर हम J की बात करें तो J का मतलब होता है द कॉलम which is to be find. तो हमें कौन से कॉलम फाइंड करना है? 1. तो I is 3, J is 1. तो means 3 1. The row is 3 and the column is 1. तो I is the row which is to be find and the column is J. That means the column which is to be find. Okay. This point is also clear.
What is the LR? LR means the start position of the matrix. 99% always the matrix start with the 0 0. जितनी भी हमारी डबल डायमेंशन एरेस की मैट्रिक्सेस होती हैं वो हमेशा 0 0 से स्टार्ट होती हैं. तो LR की बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी, बाय डिफॉल्ट वैल्यू will be 0. Understand? If it is not given in the question. अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको LR LC वो लेना है जो क्वेश्चन में मेंशन और गिवन है. Okay, 1 minute please. Just a moment please. Okay, see. And what about the default value of the LC? LC means the start position of the column. कॉलम भी हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और रो भी हमेशा 0 से स्टार्ट होती है. जब एक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन होता है तो मैट्रिक्स का जो पहला सेल होता है वो 0 0 पे होता है. आज हम थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहे हैं. डिफॉल्ट वैल्यू विल बी 0. अंडरस्टैंड? ओके, आई थिंक ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर. नो प्रॉब्लम. ठीक है, दिस इज द रो मेजर फॉर्मूला. अभी इसी से एक एसोसिएटेड रिलेटेड टॉपिक है. इफ द रो एंड कॉलम इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेंज. हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लिटिल बिट लेटर, ताकि आप पहले इस फॉर्मूले पर पूरी तरह से फेमिलियर हो जाए. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द कॉलम मेजर? क्योंकि अरेंजमेंट आपका कॉलम मेजर भी हो सकता है, या तो रो मेजर होगा या कॉलम मेजर होगा. तो कॉलम मेजर में बहुत स्लाइटली सा चेंज है फॉर्मूले में, ज्यादा कुछ चेंज नहीं. ठीक है, आपने अगर रो मेजर का फॉर्मूला देखा हो तो उसमें n मल्टीप्लाई होता है i माइनस LR से. अगर n हमारा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो रो मेजर है, और अगर हम c को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा कॉलम मेजर हो जाएगा. मैं दिखाता हूं आपको, जस्ट अ मोमेंट. ये ठीक है, अंडरस्टैंड? ये हमारा कॉलम मेजर है और r हमारा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और रो मेजर में हमारा n इससे मल्टीप्लाई होता है. ओके, बाकी सारे एब्रिवेशन सेम है. b इज द बेस एड्रेस. जस्ट अ मोमेंट प्लीज, आई जस्ट वांट टू क्लियर द, ठीक है, स्क्रीन. सो b इज द बेस एड्रेस, w इज द मेमोरी साइज, सेम. एक सेल कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है, n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स. लेकिन यहां पर हमें थोड़ा सा चेंज ये करना होगा कि n हमारे फॉर्मूले में नहीं है, r है. तो इस n की जगह पर हो जाएगा r, एंड नंबर ऑफ कॉलम नहीं, नंबर ऑफ रो. ओके, अंडरस्टैंड? तो ये r हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ रो. रेस्ट ऑफ ऑल द टर्म्स विल बी एब्सोल्युटली सेम. अंडरस्टैंड? अच्छा, अब ये aij क्या है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ aij? a हमारा एक मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है. जितनी भी मैट्रिक्स होती हैं उसको एक वेरिएबल असाइन किया जाता है. तो जैसे कि आपने एक डबल डायमेंशन एरे डिफाइन की, जस्ट अ मोमेंट मैं आपको बताता हूं. ठीक है, ये चीज भी क्लियर कर लेते हैं यहीं पर. ठीक है, आपने एक मैट्रिक्स डिफाइन करी, सपोज n. ये एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रो हैं और 3 कॉलम है. तो इस पूरी मैट्रिक्स को ये वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये जो वेरिएबल इस पूरी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज नथिंग बट a. a is a matrix variable. Each and every, either we are talking about the single dimension array or double dimension array, single dimension and double dimension both array are identified by a variable. So this is nothing but a variable. Now what is ij? ij is the position or indexes जिसका एड्रेस आपको फाइंड आउट करना है. सपोज यू वांट टू कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ दिस सेल. तो ये सेल हमारा कैसे आइडेंटिफाई होगा? ये सेल हमारा होगा 0 1 2, 1 सेकेंड, 2 1, मतलब 2 इसकी रो है और 1 इसका कॉलम है. तो i हमारा जो है i वो हो जाएगा 2 और j हमारा हो जाएगा 1. अंडरस्टैंड? अब ये बिल्कुल क्लियर है. अगर हम बात करते हैं ऐसे, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, 2 1 ऐसे अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि हमें क्वेश्चन में मैट्रिक्स का सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम पर जो एलिमेंट आ रहा है उसका एड्रेस कैलकुलेट करना है.
For calculation the address of a particular cell, we required all these terms. Okay, now I want to ask to all of you, do you have any doubt in any particular thing? So you can ask. Just a moment, I'm giving you the opportunity to ask the question. Just a moment, please. Okay, now you can ask the question. My theoretical discussion is almost over. Now I am going towards the questions. हम question आज ही solve करेंगे. Okay, so I want to ask, do you have any confusion? Do you have any doubt? Please. Sir. Yes. Sir, system में जो array store होती है वो row wise store होती है कि column wise? ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है. हम रो मेजर भी स्टोर कर सकते हैं और कॉलम मेजर भी स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ मोमेंट, ये हमारी कुछ आयरन, 1 सेकेंड मैं बताता हूं आपको. ये हमारी कुछ आयरन बार्स हैं. 1 मिनट. ये आयरन बार्स हैं, इनको हमें रूम में रखना है. तो अब हम या तो इसको ऐसे रखें स्टैंडिंग पोजीशन में, या हम इसको इस तरह से रख सकते हैं स्लैंटिंग पोजीशन में. ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है. ये दोनों अरेंजमेंट्स में हम रख सकते हैं. तो सम टाइम इट इज द डिसीजन ऑफ प्रोग्रामर कि हम एलिमेंट्स को रो मेजर वाइज स्टोर कराते हैं या हम कॉलम मेजर वाइज स्टोर करा सकते हैं. ये हमारा हेडेक नहीं है. दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. ऑलवेज दिस थिंग विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, ये चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन होंगी. मैं अभी आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, देन इट विल बी मोर क्लियर. Okay, sir. Any other doubt, please? रो मेजर और कॉलम मेजर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. बस हमें रो मेजर और कॉलम मेजर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला चूज करना है. ये अरेंजमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा और दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं और बहुत ही स्लाइटली चेंज के साथ हैं. ओके, एक चीज और. ओके, 1 सेकेंड. I think that point I have covered. Yes, base address I have covered. जब भी मेमोरी में हमारे एलिमेंट्स स्टोर होते हैं तो वो सीक्वेंशियल मैनर में ही स्टोर होते हैं. ये एक थ्योरेटिकल और वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस तरह से स्टोर नहीं होते. ओके, एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? मैं आप लोगों के लिए ही रुका हूं. डू यू हैव एनी डाउट कहीं पर, किसी भी जगह पर? प्लीज. दोनों स्ट्रीम से हम कह रहे हैं, आईसीएससी एंड सीबीएसई, बोथ द स्ट्रीम. मेरा डिस्कनेक्ट. ओके, नो सर, नो प्रॉब्लम हियर. ओके, जस्ट अ मोमेंट प्लीज. सी, अब हम क्वेश्चन में आते हैं. आपको सिर्फ थोड़ा बहुत अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का आइडिया है तो 1-2 मिनट के अंदर आप इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, डोंट वरी. ओके, मैं आपके सामने पूरे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा अभी के अभी. जस्ट अ मोमेंट. ये हमारा एक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग क्वेश्चन. ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी. सबसे पहले हमको हाईलाइटेड क्वेश्चन पे जाना है. तो माय हाईलाइटेड क्वेश्चन इज दैट व्हेन द एरे इज स्टोर्ड इन द रो मेजर वाइज. यानी ये बता रहे हैं हमको कि जो मेमोरी में एरे स्टोर हुई है वो रो मेजर है. अंडरस्टैंड? तो फाइट इज ओवर. अब हमको रो मेजर का फॉर्मूला देखना है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द रो मेजर एंड दिस इज द कॉलम मेजर? नो, आई वांट टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. सो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस फॉर्मूला एंड पेस्टिंग ओवर हियर. जस्ट अ मोमेंट, आई एम जस्ट क्रिएटिंग द स्पेस टू सॉल्व द क्वेश्चन. सी, आई हैव पेस्टेड. अंडरस्टैंड? अब अगर हम इसमें देखें तो फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमको सारी चीजों की जरूरत है. अगर हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो लेंथ भी चाहिए और ब्रेथ भी चाहिए, देन एरिया कैन बी कैलकुलेटेड. अब देखो, सबसे पहले हमारी मैट्रिक्स का जो वेरिएबल है वो ए है और हमारे फॉर्मूले में भी ए है. सम टाइम ये एक्स होता या बी होता या डी होता, बहुत आराम से समझना है. तो हम अपने फॉर्मूले में भी ये वेरिएबल चेंज कर लेते. ओके, अब ये कह रहे हैं कि एरे जो है हमारी वो 5x4 की है, यानी इसमें 5 रो हैं और 4 कॉलम है. इज स्टोर्ड इन द मेमोरी विथ ईच एलिमेंट इज रिक्वायरिंग द 4 बाइट ऑफ स्टोरेज. मतलब हर सेल हमारा
4 बाइट स्पेस ले रहा है। तो 4 बाइट ऑफ स्टोरेज का मतलब यह है कि W हमारा जो है, क्योंकि W होता है हमारा मेमोरी साइज, तो 4 बाइट ऑफ स्टोरेज का मतलब है कि ये W गिवन है। तो W हमारा हो जाएगा कितना, 1 मिनट, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, 1 सेकेंड, ओके। तो माई W विल बी हाउ मच, 4। अंडरस्टैंड, सब कुछ आपके सामने। इफ द बेस एड्रेस ऑफ A00, मैंने आपको बताया कि जो 00 हमारा सेल होता है उसका जो एड्रेस होता है वही हमारा बेस एड्रेस होगा। तो A00 इज 3000, यानी कि हमको बेस एड्रेस गिवन है 3000। मैं सिर्फ वो चीजें लिख रहा हूं जो गिवन है। अंडरस्टैंड। अब आते हैं डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ A32, मतलब थर्ड रो के सेकंड कॉलम पर जो भी एलिमेंट स्टोर है उसकी लोकेशन हमें फाइंड आउट करना है, उसकी लोकेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो ये 3 और 2 क्या है, दिस इज द रो विच इज टू बी फाइंड, दिस इज द कॉलम विच इज टू बी फाइंड। तो हमारा जो I है वो हो जाएगा 3, बिकॉज I इज द रो विच इज टू बी फाइंड एंड J इज कॉलम दैट इज 2। एक बार हम आपको थोड़ा सा एक जस्ट 1-2 सेकेंड के रिवीजन के लिए I और J दिखा देते हैं। ये I हमारा है द रो विच इज टू बी फाइंड एंड J इज द कॉलम विच इज टू बी फाइंड। फाइंड को दूसरे सिनोनिम्स में हम लोग डिटरमाइन भी कहते हैं। तो यहां पर इन्होंने वर्ड डिटरमाइन यूज कर लिया है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो I एंड J इज क्लियर। ओके, नाउ आफ्टर दैट, अभी हमारा फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब n की बात करते हैं। तो n का मतलब होता है, अगर हम रो मेजर की बात कर रहे हैं, रो मेजर, तो n हमारा होता है कॉलम। कॉलम देखो, मैं एक बार दिखा देता हूं तुम लोगों को, 1 मिनट। ये देखो, n होता है नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम हमेशा जब भी हम देखते हैं तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स से देखते हैं। तो ये हमारा रो है और ये हमारा कॉलम है। दिस 5 इज रो एंड 4 इज कॉलम, क्योंकि हमारा जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है R इंटू सी। तो n हमें लिखेंगे यहां पर 4। ओके, नाउ सिंपल कैलकुलेशन इज देयर, वी हैव टू सिंपल पुट द वैल्यू। सो अब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा I कितना है हमारा 3, हमने यहां से कैलकुलेट किया, और J हमारा कितना है 2, मतलब हमें A32 का एड्रेस कैलकुलेट करना है। D इज 3000 प्लस, जल्दी नहीं करना है, बॉडमास का रूल फॉलो करना है। W, व्हाट इज W? W इज 4 ब्रैकेट N, व्हाट इज N? अब सारी वैल्यू हमारे सामने है, सारी वैल्यूज हमारे सामने हैं, तो यहां पर हमको लिखना है 4 एंड मल्टीप्लाइड, व्हाट अबाउट I? I इज 3 माइनस LR, हाँ LR LC बचा है, ओके, वो भी तो फॉर्मूले में लिखना है। तो व्हाट इज LR? LR का मैंने बताया था आपको, स्टार्ट पोजीशन ऑफ रो एंड स्टार्ट पोजीशन ऑफ कॉलम। तो LR LC यहां से पता चलता है कि द बेस एड्रेस ऑफ A00, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स जो है वो 0 रो के 0 कॉलम से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि बेस एड्रेस हमेशा 0 का ही होता है। ओके, तो LR हो जाएगा हमारा 0 and LC will be 0. Start location of matrix always 0 0. Just a moment. So 3 minus, यहां पर हमको पुट करना है LR की वैल्यू दैट इज 0 प्लस J कितना है? J हमारा है 2 माइनस LC कितना है? 0 ब्रैकेट एंड वन मोर ब्रैकेट इज देयर। अब देखो, अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं 4। अब मेरे साथ साथ आप लोग भी कैलकुलेशन कर लीजिए, लेकिन पहला कैलकुलेशन हम बिल्कुल डिटेल में करना चाह रहे हैं, बिकॉज सम स्टूडेंट में भी, ठीक है, 3 माइनस 0 होता है 3 और 2 माइनस 0 होता है 2, वेरी बेसिक, इज इक्वल टू 3000 प्लस 4 ब्रैकेट। अब क्या होगा, 1 सेकेंड। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमको बॉड मास अप्लाई करना है, तो 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 सर 2 होगा।
3 minus, oh sorry, this will be 2. Okay, sorry. So 4 3s are 12. 12 plus 2 is 14. Okay, अब ये आ गया हमारा. अब इसके बाद 14 into 4 is equal to 56 is equal to 3000 plus 56, and the answer will be 3056. 3056 is the address. One second please. Is the memory address of which location? 3, 2. Understand? This question is clear to all of you. This is my answer. अगर हम सारी चीजों को प्रॉपर आइडेंटिफाई कर लेते हैं और हमने सही फॉर्मूले का चूज कर लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अगर हमें यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कॉलम मेजर वाइज से दिया होता, ऐसा भी तो हो सकता है, या तो रो मेजर में दिया होगा या कॉलम मेजर में दिया होगा. सेम क्वेश्चन आई वांट टू डू विद द कॉलम मेजर, नो प्रॉब्लम. ओनली वी हैव टू चेंज दिस फॉर्मूला. सिर्फ इस फॉर्मूले को हमें चेंज करना है, तो बाकी सारी चीजें हमारी सेम होंगी. तो 1 सेकेंड, हम कॉलम मेजर वाइज का फॉर्मूला ले लेते हैं यहां से, कॉपिंग, और नीचे यहां पर ये हमारा था रो मेजर, दैट इज ओवर. अब इसको हमने यहां पेस्ट कर लिया. अब पेस्ट करने के बाद सारी चीजें तो यही रहेंगी, बस एक चीज बदलेगी. क्या बदलेगा? हाँ, यहां पर मैं लिख देता हूं कि सेम क्वेश्चन विथ कॉलम मेजर वाइज. सेम क्वेश्चन को हम लोग कॉलम मेजर वाइज कर रहे हैं. अंडरस्टैंड? तो अब ये हमने पेस्ट कर दिया. ये वही सारी चीजें जो हमने अभी आइडेंटिफाई की थी. तो इसमें n की जगह पर हो जाएगा r, क्योंकि इस फॉर्मूले में r गिवन है. r गिवन है तो r हम क्या लेंगे? r हम लेंगे ओरिजिनल मैट्रिक्स का रो. तो 1 सेकेंड, ओरिजिनल मैट्रिक्स का रो क्या है? हमारी 5 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स थी, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स का रो है हमारा 5. So only we have to place the 5. Understand? Clear? अब हम जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो सॉल्व करने के लिए ओके, b हमारा कितना है? b है हमारा 300, sorry, no, 3000. What I have placed actually, just a moment. 3000. 1 second, the minor mistake is there. 3000. Understand? So here is 3000. Okay, 3000 and plus. Now I know that most of the students are expert in the calculation. So W is 4. Understand? Now 2 brackets will be there. I is what? 3, and LR is 0. No problem. Plus, what about R? R has been changed. That is 5. Multiplied, very simple calculation. What about J? J is 2 and LC is 0, because the starting position is 0 0, this bracket and this bracket. How much answer will be there? Just a moment. 3000. धीरे धीरे मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, बहुत धीरे धीरे. 4. अब हम इसको थोड़ा क्लियर करके ऐसे लिख सकते हैं, 3 minus 0 will be 3 plus 5 into 2 minus 0 2. तो यहां पर बॉडमास का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब आपका सबसे पहले अगर हम इस ब्रैकेट की बात करें, तो इस ब्रैकेट के अंदर ये प्लस है और ये मल्टीप्लाइड है, तो पहले ये पोर्शन आपको कैलकुलेट करना है. अंडरस्टैंड? किसी के लिए बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लस 4 ब्रैकेट 3 प्लस 5 2 10. अंडरस्टैंड? तो ये हो गया. अब अगर हम बात करें तो 30, 10 plus 3 30, and 10 plus 3 13. 13 into 4, how much? 13 into 4 will be is equal to 3052
is the answer when the matrix will store in column measure wise. Actually the meeting will be over in the 10 or 15 seconds. Till then you can ask any question if you have any doubt. Please, everything is in the front of you. Anybody want to ask any question? Please, without any hesitation. आपकी प्रॉब्लम है तो आपको डिस्कस करनी पड़ेगी. Don't think कि लोग नहीं पूछ रहे. Please ask. Please ask. Don't feel hesitation. Actually मीटिंग ओवर होगी, हम रिकनेक्ट होंगे. अगर हम इन क्वेश्चंस की बात करें तो इन क्वेश्चंस में एक चीज को ड्रॉप करके सारी चीजें गिवन होती हैं. ओके, अभी फॉर एग्जांपल हमें A32 का एड्रेस कैलकुलेट करना था. ओके, तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. A32 हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, हमसे W पूछ लिया जाए. W का मतलब होता है हाउ मच स्पेस इज ऑक्यूपाइड, मेमोरी साइज. हमसे N पूछा जा सकता है, हमसे I पूछा जा सकता है, हमसे LR पूछा जा सकता है. एनीथिंग कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. लेकिन उसको ड्रॉप करके सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगी. तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग वो सारे सिनेरियोज कवर करेंगे. जस्ट अ मोमेंट, एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग जल्दी से देखते हैं. दिस इज द अनदर एग्जाम्पल, अ न्यू क्वेश्चन. ओके, इसमें आपको नई वैल्यूज दी हैं, बाकी सब कुछ सेम है. तो एक और क्वेश्चन कर लेंगे तो थोड़ा सा बेटर आइडिया हो जाएगा. जस्ट अ मोमेंट, ये भी हम आपके सामने ही करेंगे. ओके, अभी हम सिर्फ हम ही कर रहे हैं. ठीक है, अभी यहां पर व्हेन द एरे इज स्टोर्ड इन रो मेजर, जैसे ही हमने ये लाइन पढ़ी, माइंड में हमारे स्ट्राइक होना चाहिए कि विच फॉर्मूला आई एम गोइंग टू अप्लाई. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, रो मेजर, ये वाला फॉर्मूला. ओके, हम ये सारी चीजें कॉपी कर लेते हैं वहां पर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में से ढूंढ करके इन सारी चीजों को पुट करना होगा. 1 मिनट, जस्ट अ मोमेंट. नॉट अ टफ टॉपिक. ओके, एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो. आप क्वेश्चन पूछते हैं, आपको आपके डाउट्स क्लियर होंगे. 1 सेकेंड प्लीज. ओके, सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एक्चुअली हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका वेरिएबल ARR दिया है. नो प्रॉब्लम, आई हैव टेकन द ARR. 10 5, 10 का 5 का मतलब है कि 10 रो है, 5 कॉलम है. तो रो इज 10, 5 is the column. It is stored in the memory with each element requiring the 2 byte. What is the meaning of this 2 byte? What is this? What is this? 2 byte का मतलब है कि हमको W दिया हुआ है. W, very good. तो W अगर हमें दिया हुआ है तो हम अपने W को 2 कर लेंगे. Okay. If the first element of the AR00 is stored in the location of 1250. So what is this? ये क्या है? ये क्या है? This is the base address. यानी कि पहला एलिमेंट, पहले एलिमेंट का एड्रेस क्या है? स्टैंड. तो बेस एड्रेस हमारा हो जाएगा 1250. ओके, कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ ARR 53. ये 5 क्या है, ये 3 क्या है? दिस इज द रो विच इज टू बी डिटरमाइंड, दिस इज द कॉलम विच इज टू बी डिटरमाइंड. तो I हमारा क्या हो जाएगा 5 and J will be 3. Understand? Now what about the N? N क्या होगा? N क्या होगा? 5. N क्या होगा? 5. अगर हमारा अरेंजमेंट रो मेजर वाइज है तो N हमारा होता है कॉलम ओरिजिनल मैट्रिक्स से. तो दिस इज द रो एंड दिस इज द कॉलम, तो 5 होगा. सिंपल. Okay, 100% this question will be asked in from comparative to board, और सीक्वेंस भी नहीं बदलेगा. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ही पूछा जाएगा. ओके, नाउ अब हमें सारी चीजों को बहुत जल्दी जल्दी अप्लाई करना है. तो जल्दी जल्दी अप्लाई करने के लिए बी कितना है हमारा? सारी चीजें मैंने लिख ली ना प्रॉपर. ओके, नो प्रॉब्लम. सो 1250 प्लस हाउ मच W? W is 2. जब आप ये चीजें मेंटेन कर लेते हैं तो बस आपको इनको पुट करना है. ब्रैकेट
n कितना है, n है 5 मल्टीप्लाइड, फॉर्मूला वाइज चल रहे हैं, i कितना है, i का मतलब होता है द रो विच इज टू बी फाइंड, दैट इज 5 minus what is LR and LC. If not given the question, take the 0 0. So 5 minus 0 and J. What is J? 3 minus LC. This will be 0. Bracket and one more bracket. Okay. Calculations में आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, आराम से सॉल्व करना है. तो थोड़ा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो थोड़ा सा हम फास्ट होंगे, ज्यादा नहीं. प्लस 2 अगर हम देखें तो 5 into 5 25 and 25 plus 3 28 28 8 to the 16 और 2 to the 4 15. इतने पोर्शन का आंसर आपका 56 आ जाएगा. एंड 12 50 प्लस 56. आई डोंट थिंक सो कि आपको एडिशन और कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम होगी. तो अब अगर हम देखें 1250 प्लस 56, तो दिस वन विल बी 6 and 5 0 and 13. ये आंसर आपका आ जाएगा मेरे हिसाब से. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? डू यू हैव एनी डाउट, कंफ्यूजन? प्लीज, समवन इज आस्किंग क्वेश्चन, प्लीज. यस, एवरीथिंग इज क्लियर? Do you want to ask Yes, any question? No, sir. ये थोड़ा एक्चुअली No, sir. बार इतने एग्जाम्स होंगे, और जो लोग यार मैथमेटिक्स के हैं उनके लिए तो ये तो कुछ ऐसा है नहीं. ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपके सामने बिल्कुल वैसे सॉल्व कर रहे हैं जैसे हम भी मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं. ओके, अब हम इसी को कॉलम मेजर से कर लेते हैं, क्योंकि हम दोनों को एक साथ पैरेलली लेके चल रहे हैं. तो अगर हम कॉलम मेजर की बात करें तो अभी आपके सामने ही हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस. इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं जल्दी से. ये कलर चेंज कर लेते हैं. ओके, अब देखो, जो आप n से मल्टीप्लाई यहां करते हैं, किसमें? रो मेजर में. आप इसको रिमूव करिए और इस दूसरे सेट में r से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो जैसे ही आप ये काम करेंगे, आपका ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा किसके लिए? कॉलम मेजर वाइज के लिए. ठीक है, अब अगर कॉलम मेजर वाइज की बात की जाए तो सारी चीजें तो यही होती हैं. तो आई एम जस्ट कॉपिंग एंड पेस्ट. सारी चीजें आपकी यही होंगी. इस ये आपका फॉर्मूला था. जस्ट अ मोमेंट प्लीज. इसको एक्चुअली ऐसे लेना जरूरी है. वैसे तो इसकी वीडियो आपकी अपलोड हो रही है, आप उसको देखकर इससे, चलिए मैं अभी इसको क्लियर कर देता हूं. आप वीडियो को जब मैं अपलोड कर दूंगा तो आप उससे नोट्स बना लीजिएगा. ओके, क्योंकि यहां पर स्क्रीनशॉट लेने में फिर क्वेश्चन प्रॉपर आ नहीं रहा है. 1 second प्लीज. I just want to clear all this drawing. Just for a second. Okay. Now, अब अगर हम बात करें तो सब कुछ तो वही है, बस इस n की जगह पर आपका r हो जाएगा. अंडरस्टैंड? और r को हम क्या लिखेंगे? हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 10 5. तो 10 इज द रो एंड 5 इज द कॉलम. तो यहां पर हमारा हो जाएगा 10. अंडरस्टैंड? Clear? Okay. Now immediately we have to put all the values and calculate the answer. No problem. आप हमारी हेल्प कर सकते हैं कैलकुलेशन में. Okay, C. तो B हमारा कितना है? 1250. And what about W? W is 2. 2 brackets. I कितना है? 5. LR कितना है? 0 प्लस R कितना है?
10 multiply, what about j? J means the row which is to be find and the j is the column which is to be find. So 3 minus minus 0, good, bracket and one more bracket is there. Now अब हम इस स्टेज पे आ गए, तो अब सिर्फ हमको कैलकुलेशन करना है. कैलकुलेशन में बॉड मास रूल बार बार हम कह रहे हैं. इनफैक्ट एक्सपर्ट्स जो स्टूडेंट थे जिनको बहुत कॉन्फिडेंस था अपने मैथ पे, उनके क्वेश्चन भी एक बार गलत हो चुके हैं. तो 5 minus 0 5. तो गलती किसी से भी हो सकती है. दिस इज द मैथमेटिक्स. केयरफुली मल्टीप्लाइड बाय 3. अंडरस्टैंड? अगर हम ब्रैकेट की बात करें तो अब हमारा आंसर कितना आएगा? ब्रैकेट के अंदर के अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 10 3s are 30. 30 plus 5 कितना भैया? 10 into 3 30. 30 plus 5 35. ओके, अब 35 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, कितना आएगा? कितना आएगा? 70. एंड 1250 को अगर हम 70 से ऐड कर लें देन 320. सिंपल सा कैलकुलेशन है, अभी मैं आपके सामने ही कर रहा हूं. 1250 प्लस 35 into 2 is equal to 1320. Yes. Done. Hamza, are you there? Okay. Okay, fine. So this is done. This is row major and column major we have done. Okay. In this manner you can calculate any question like that. अब अगर ये चीजें आपको क्लियर हो गई, रो मेजर एंड कॉलम मेजर, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन. तो हम जस्ट इसके एक, हाँ, यस यस, दोनों रो मेजर और कॉलम मेजर से आंसर हमेशा अलग अलग आएंगे? अलग अलग भी आ सकते हैं और सेम भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे यहां पर आप देखें तो 1306 हमारा आंसर था रो मेजर का और 1320 हमारा आंसर है कॉलम मेजर का है. ये डिपेंड करते हैं इन एलिमेंट्स पर. कभी कभी 2 into 3 आंसर आता है 6 और हो सकता है कुछ ऐसा अरेंजमेंट आ जाए कि जिसमें हम 6 into 1 कर रहे हैं तो 6 है. कोई आदमी इसको सॉल्व कर रहा है स्क्रीन पे. ओके ओके, नो प्रॉब्लम, करो सॉल्व. ठीक है. अच्छा, तो डिपेंड करता है इन सेल्स और एलिमेंट्स पे. कभी कभी कोइंसिडेंटली कैलकुलेशन के बाद आंसर सेम आ जाता है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है. दोनों आंसर सेम भी आ सकते हैं और डिफरेंट भी आ सकते हैं. कैन यू प्लीज कंफर्म दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. yes sir. Okay. Sometime row and column are not given in a static or fixed value, in the form of a static and fixed value. कभी कभी ऐसा होता है, sometime it happens. मैं आपको बता दूं कि जैसे यहां पर अभी दिया है 5 क्रॉस 4, मतलब ये रो है, ये कॉलम है. इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड वैल्यूज. तो कभी कभी हमें रो और कॉलम सॉलिड वैल्यूज में नहीं दिए होते, हमको रो और कॉलम रेंज के फॉर्म में दिए होते हैं. रेंज का मतलब रो जो है वो 1 से लेकर के 5 तक होगी और कॉलम जो है वो 8 से लेकर के 12 तक होगा. इसको बोलते हैं रो एंड कॉलम इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेंज. ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी देखा गया है. ओके, तो मैं अभी आपको दिखाता हूं. जस्ट अ मोमेंट, आई वांट टू क्लियर ऑल दिस. दिस इज द नेक्स्ट लेवल. हम नेक्स्ट लेवल डिस्कस कर रहे हैं, टाइम कम है इसलिए. अब यहां आ जाइए. अगर हमको
इफ रो एंड कॉलम इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेंज। मैंने सब चीजें पहले से बना रखी थी ताकि हमारा टाइम कम से कम कंज्यूम हो। अब ये जो पूरा पोर्शन है वो रो का है, मतलब -15 से लेकर के 10 तक आपको रो का एरिया दिया है। जैसे होता नहीं है कि अभी मैं आपको बताता हूं, जस्ट अ मोमेंट। जैसे हमने कहा कि हमारा ये स्पेसिफिक एरिया नहीं है, हमारा एरिया है तुलसीदास मार्ग से लेकर के हजरतगंज तक। दिस कंप्लीट एरिया इज कमिंग अंडर मी। यहां पर हमको कुछ, ठीक है, ये पूरा एरिया हमारे अंडर में आता है, अंडरस्टैंड। और इसके बाद का पोर्शन वो किसी और के अंडर में आता है। तो यहां से यहां तलक आपका रो का पोर्शन है और यहां से यहां तलक आपका कॉलम का पोर्शन है। तो जब रो एंड कॉलम एक रेंज के फॉर्म में दिए होते हैं तो जो पहला एलिमेंट होता है उसको कहा जाता है LR। LR मतलब लोअर रो, दिस इज अपर रो, दिस इज लोअर कॉलम एंड दिस इज अपर कॉलम। बट हमको एक सॉलिड और फिक्स वैल्यू चाहिए है फॉर्मूले में पुट करने के लिए, और जो होता है हमारा n। तो n को हम कैलकुलेट करेंगे इस तरह से, मतलब अगर हमें रो और कॉलम रेंज के फॉर्म में दिए हैं तो हम n, और इन अदर वर्ड्स के हम रो को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोसीजर ये है कि n कैलकुलेट करने के, देन हाउ टू कैलकुलेट द रो। या इसको अगर हम बेसिकली यहां पर हमने लिया, इफ द रो एंड कॉलम इज द गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेंज, तो अगर हमको एक मिनट जस्ट अ मोमेंट, एक्चुअली जस्ट माइनर मिस्टेक इज देयर, क्योंकि हम लोग रो मेजर कर रहे हैं। तो रो मेजर में जो n होता है वो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, तो यहां पर n जो होगा हमारा वो होगा नंबर ऑफ कॉलम। तो हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉलम, अंडरस्टैंड। तो n हमारा जो है वो नंबर ऑफ कॉलम है। तो UC माइनस LC प्लस 1, तो व्हाट इज UC? UC इज 40, जस्ट अ मोमेंट, UC इज 40, तो 40 माइनस व्हाट इज LC? LC इज 15 प्लस 1, ये हमारा आएगा वैल्यूज, ये हमारी वैल्यूज आएंगी। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए हम पहले ऐड कर लेते हैं। तो 40 प्लस 1 41 माइनस 15, अंडरस्टैंड। तो 41 माइनस 15, 11 माइनस 5 is 6, 26, दिस इज माई वैल्यू ऑफ n। तो अगर आपको रो और कॉलम रेंज के फॉर्म में दिए हैं तो आपका n इस तरह से कैलकुलेट होगा, तभी आप फॉर्मूले की इनकम्प्लीटनेस को कंप्लीट कर पाएंगे, अंडरस्टैंड। इनकम्प्लीटनेस को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि जब तक सारी वैल्यूज आप पुट नहीं करेंगे तब तक आप एक स्पेसिफिक वैल्यू को कैलकुलेट कर नहीं सकते। तो ये तो उस केस में था जब आपका रो वाइज अरेंजमेंट हो। मान लीजिए कि आपका कॉलम वाइज अरेंजमेंट है एंड रो एंड कॉलम आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेंज। तो टोटल, माय डियर स्टूडेंट, ओनली टोटल 4 फॉर्मूलाज आर देयर। अगर ये 4 फॉर्मूले आप पढ़ लेते हैं तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू कैन हैंडल, माय गारंटी। सेकेंड फॉर्मूला, इफ रो एंड कॉलम इज द गिवन ऑफ फॉर्म ऑफ रेंज, सो हाउ टू कैलकुलेट द रो। अब यहां पर आर रो है, तो अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस इज द लोअर रो, दिस इज द अपर रो, दिस इज द LC, दिस इज द अपसी। अब फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले फॉर्मूला हमने यूज किया था UC माइनस LC प्लस 1, अब हम यूज कर रहे हैं UR माइनस LR प्लस 1। तो नो प्रॉब्लम, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, जस्ट आई वांट टू क्लियर ऑल दिस, 1 सेकेंड। तो अब R कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? व्हाट वी हैव टू डू, UR। तो व्हाट इज माय UR? UR इज 10 माइनस व्हाट इज LR? LR इज माइनस 15। तो माइनस माइनस प्लस हम लिख सकते थे, लेकिन अभी हम यहां 15 ऐसे लिख देते हैं। हल्की मैथ अप्लाई कर रहे हैं, बहुत हल्की, प्लस। अब हम इसको फिलहाल ऐसा कर देते हैं, पहले माइनस माइनस प्लस होता है एंड प्लस 1, total will be is equal to 26. This 26 is n, the value of n,
Understand? Please respond. Can you please confirm? अगर आपको रो Yes, sir. रेंज के फॉर्म में दी है तो आप रो कैसे कैलकुलेट करेंगे और आप कॉलम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पर हम अभी आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। अगर ये आपको क्लियर है तो हम कैन वी गो टू द नेक्स्ट लेवल? क्लियर? प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. बहुत इजीली हम जल्दी से एक क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, मैं जरा सा क्वेश्चन बस देख लूं जब तक आप इस फॉर्मूले को देखिए। आई जस्ट वांट टू जस्ट सेलेक्ट अ क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देखना चाह रहा हूं। ओके, ज्यादातर आपके क्वेश्चन बोर्ड के ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आई थिंक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, तो हमें चीजों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखना है। अगर ये 4 कॉम्बिनेशन आज कवर हो गए तो इट विल बी अ वेरी बिग अचीवमेंट। चलिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन आप साथ साथ में मेरे लिख भी सकते हैं अगर आपकी स्पीड हमारे साथ मैच होती है। ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे x -15 डॉट 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 10 कॉमा। अब जो क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं उसमें रो और कॉलम आपको फिक्स नहीं दिया जाएगा, रेंज के फॉर्म में दिया जाएगा। तो 15 डॉट 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 40, ये कॉमा बता रहा है कि इतना पोर्शन रो का है और इसके आगे का पोर्शन कॉलम का है। अंडरस्टैंड? रिक्वायर 1 byte of storage if array is stored in column measure wise। कभी कभी कॉलम मेजर वाइज आपको बीच में भी दिया जाता है, कभी कभी लास्ट में भी दिया जाता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विथ द बिगिनिंग लोकेशन 1500, determine the location of x 5, 20. Okay, new question is in the front of us. Okay, मैं थोड़ी सी कुछ लेबलिंग कर रहा हूं ताकि हमारी चीजें इजी हो जाए, बस जस्ट स्मॉल लेबलिंग इज देयर। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा है लोअर रो और ये है हमारा अपर रो। ऐसे ही आप अपने कॉपी में भी कर लेंगे। एंड ये हमारा है लोअर रो अपर रो, एलसी यूसी। क्लियर? अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि ये है क्या। ये है भैया कॉलम मेजर वाइज। तो कॉलम मेजर वाइज के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? अब हमको फॉर्मूला याद हो गया है, अब हमें फॉर्मूला याद हो गया है, तो हम बिना देखे लिखेंगे। तो फॉर्मूला है हमारा x और x के बाद हम लिखते थे ij इज इक्वल टू b प्लस w i माइनस LR प्लस R J माइनस LC। ये फॉर्मूला। अंडरस्टैंड? अब इसके अंदर सब कुछ तो हमको मिल जाएगा, बस R नहीं मिलेगा, क्योंकि R हमें फिक्स वैल्यू के फॉर्म में नहीं दिया है, रेंज के फॉर्म में दिया है। लेकिन अगर रेंज के फॉर्म में भी है तो हम R कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका भी प्रोसीजर हमारे पास है। R को हम स्मॉल कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, अब देखो यहां पर पहले हम सारी चीजें जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। बताओ B कितना है, क्योंकि मैं चाहता हूं आप मेरे बिना इसको ना पढ़े, साथ में पढ़ें। ठीक है, B कितना है हमारा बेस एड्रेस? हाउ मच इज द बेस एड्रेस?
हाउ मच इज अ बेस एड्रेस? बेस एड्रेस ये देखिए सामने दिया हुआ है, सबसे बड़ी वैल्यू हमारी बेस एड्रेस ही होती है। बेस एड्रेस के बाद आप क्या ले लेते हैं? डब्ल्यू ले लेते हैं। हाउ मच इज डब्ल्यू? देखो यहां देखो, रिक्वायर 1 बाइट ऑफ स्टोरेज, 1 बाइट ऑफ स्टोरेज। तो डब्ल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 1 बाइट। अब डब्ल्यू के बाद आई, आई क्या होगा? आई का मतलब होता है द रो विच इज टू बी फाइंड एंड द जे द कॉलम विच इज टू बी फाइंड। तो जो फाइंड का मतलब होता है डिटरमाइन, तो वो ये दिया हुआ है। तो आई कितना हो जाएगा हमारा? आई 5 एंड जे, जे कितना? हाउ मच? 20। ओके। अब यहां पर एक चीज का ध्यान आपको बहुत बहुत ध्यान से आपको समझना है। व्हाट इज एल आर एल सी? अब यहां 0 0 से मैट्रिक्स स्टार्ट नहीं हो रही है कि हम इसको 0 ले लें, 0 ले लें। अब देखो ये जो मैंने लेबलिंग करी थी वो थोड़ा नीचे आ गई है, इसको फिर ऊपर करते हैं। ये देखो ये लेबलिंग जो मैंने की थी, तो इस लेबलिंग के आधार पे ये हमारा एल आर है, एल आर, और ये हमारा एल सी है। मतलब रो जो स्टार्ट हो रही है वो -15 से हो रही है और कॉलम जो स्टार्ट हो रहा है वो 15 से हो रहा है। तो अब हमें एल आर एल सी 0 0 नहीं पुट करना है, एल आर को पुट करना है -15, एल सी को पुट करना है 15। एल आर को पुट करना है, आपका जो एल आर है वो होगा आपका में -15 और एल सी 15। तो जस्ट अ मोमेंट, तो एल आर हो जाएगा हमारा -15 और एल सी कितना हो जाएगा भैया? 15। अब आर अभी हमारे पास नहीं निकल के आ पा रहा है, तो आर कैसे निकलेगा? आर का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? आर, आर हम कैसे निकालेंगे? डू यू हैव एनी आइडिया? आर का हमारा फॉर्मूला होगा ऊपर, जब हमारा क्वेश्चन जो है, जब हमारा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हमारा जो है, थोड़ा सा हम इसका फॉन्ट को डिक्रीज कर दें, ज्यादा स्क्रीन को स्क्रॉल करना पड़ रहा है। 1 मिनट, आराम से समझ रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? आराम से समझते हैं इसको, ठीक है? अब हमको आर निकालना है, तो हमारा जो अरेंजमेंट है वो कॉलम मेजर वाइज है, क्वेश्चन में गिवन है। तो कॉलम मेजर वाइज अगर है, तो कॉलम मेजर वाइज में अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया था ये, तो फॉर्मूला हमारा है यू आर माइनस एल आर प्लस 1, क्योंकि हमें आर निकालना है तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, यू आर माइनस एल आर प्लस 1। कोई बात नहीं, करते हैं अप्लाई, यहां पर आ जाते हैं। तो एक सेकेंड बस, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करना चाह रहा हूं स्क्रीन को, ठीक है? अब यहां पर आर निकालने के लिए, आर निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे यू आर माइनस एल आर प्लस 1। तो व्हाट इज यू आर? व्हाट इज यू आर? दिस इज एल आर, दिस इज यू आर, लोअर रो अपर रो, दिस इज लोअर कॉलम, दिस इज अपर कॉलम। तो यू आर क्या है? 10। एल आर क्या है? -15। तो माइनस इज ऑल्सो देयर, तो माइनस माइनस प्लस 15, हल्की सी मैथ है बस, एंड प्लस 1 इज इक्वल टू हाउ मच? 26। नो इश्यूज, नो प्रॉब, व्हाट्स अ प्रॉब? अब यहां पर इधर वाला एल आर में 26 लिखने का है, ओके? नाउ 26 इज देयर, ओके? आप चाहे तो इस फॉर्मूले को साथ में रखें। अब हम यहां पर इन चीजों को फ्लप करेंगे, तो फ्लप करने के लिए बी कितना है? बी 15। अब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, 1500 प्लस हाउ मच डब्ल्यू? 1 बाइट, वैल्यूज छोटी हैं, जल्दी कैलकुलेट हो जाएंगी। 2 ब्रैकेट्स इज देयर, आई एंड जे, आई इज 5, okay? What about LR? LR is -15 and -15
See, and minus is also there. So minus minus plus 15 you can write. सब कुछ आपके सामने मैं सॉल्व कर रहा हूं. प्लस व्हाट अबाउट आर? आर अभी आपने जस्ट कैलकुलेट किया है, याद होगा आपको. 26 ब्रैकेट जे. व्हाट इज जे? मैंने सब निकाल के रखा है. 20. ये होता है सिस्टमेटिक काम करने का तरीका. माइनस व्हाट इज एलसी? एलसी इज 15. नो प्रॉब्लम. ओके, नाउ जस्ट ब्रैकेट. अब बस हमारी मैथ है और कुछ नहीं. अब हमारी सिर्फ मैथ है. तो थोड़ा सा हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको हम लिख लेते हैं 20. 15 प्लस 5 20 और ये हो गया 26, क्योंकि अभी पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा. तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 5. अंडरस्टैंड? 6 5 द 30, 5 2 द 10 11 12. ठीक है, 6 5 द 30. जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा सा हम इसको डाउन नहीं होगा क्योंकि लिख रहा हूं मैं ना एक्चुअली. तो अभी यहां पर इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा, इसका कैलकुलेशन, इस पोर्शन का कैलकुलेशन यहां पर थोड़ा सा हम कर रहे हैं इस जगह पर, क्योंकि नीचे हम जा नहीं सकते, थोड़ा सा स्क्रॉलिंग इश्यूज हैं. तो 1500 प्लस 1. अब हम ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे? तो बॉड मास के हिसाब से पहले ये पोर्शन सॉल्व होगा. सो 20 प्लस 6 5 30, 5 2 10 और 3 13, 130. 1500 प्लस 1. एक एक स्टेप हम आपके सामने सॉल्व करें. 150, 130 प्लस 20, 150. 150 इंटू 1, 150. एंड 0 प्लस 0 0 and 5 plus 0 5. 5 plus 1 6 and 1. Okay, this is your final and confirmed answer when the row and column will be given in the form of range. Very important lecture. Now after completing question, I give the time to you. There are 15 to 16 participants and I'm asking, any doubt, any confusion, please let me know. The second slot of meeting is about to No, over sir. in the 5 minutes. Very good. I'm asking to everyone, No, sir. 5 minutes mein my class is over. I don't want to take any other question. No, Only 5 minutes. Your query session, your class, your discussion, your doubts, कहीं पर कुछ भी हो, सब कुछ हमारे सामने है. आप आराम से पूछ सकते हैं. Okay, 1 minute. Zoya, do you have any problem? No, sir. Nishti, are you there? Yes, sir. Do you have any problem? No, sir. And Hamza will not have the problem, so I'm not asking. Bhavya, are you there? Yes, sir. Not asking any question? Clear? Clear? Yes, sir. कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं. जस्ट मोमेंट, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं.